Anurag ji will join in a while. Namaskar everyone. I, Kritika Jain, student of BA GMC SEM 4, welcome you all to the e-Symposia Social Media and Privacy New IT Rules organized by the Department of Journalism and Mass Communication of IIS deemed to be University Jaipur. Today, we have with us Sri Rahul Mahajan, Content Head of Prasar Bharati, Sri Prem Prakash, Assistant Editor of Jansatta, Sri Abhishek Kumar, Founder of Indic, and Sri Anurag Punetha, Senior Anchor of Lok Sabha TV. I request Dr. Ashok Gupta Sir, Chancellor, IIS deemed to be University, to kindly welcome the guest. Namaskar. Shri Rahul Mahajan, Content Head, Prasar Bharati, Shri Prem Prakash from Janasatta, Shri Abhishek Kumar, Founder, Policy Platform, Indic, our advisor of the Department of Journalism and Mass Communication, Shipra Mathur, colleagues, guests, and dear students. It's indeed a great day when we have assembled to discuss and understand the nuances of social media intermediaries. As you know, social media is the source of information at the moment. And the kind of information which is circulated through social media, be it Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, and other sources of information, the contents sometimes are so horrible that you don't feel like even looking at them. I tell you from my own experience, for the last 2 months, I have not been watching any private news channel, simply because the kind of negativity that I get after watching those channels, I can't withstand that. So whenever I have to watch a news channel, I switch on simply Doordarshan News. Doordarshan News has become one of the most authentic sources of information at the moment. And I don't want to talk about any other channel because the situation is very bad. I don't even read newspapers for the last 1.5 months, simply because of the fact that the kind of information which is circulated, instead of giving positive
image of our country and our countrymen. Some newspapers, I mean, provide you things which could have been avoided, even through WhatsApp and through Twitter and Facebook and other platforms. A lot of unwanted information is tweeted or it is loaded. We at the IS University believe in true journalism. We believe that whatever is right should be put up before people, and anything which hurts the sentiments of somebody or which creates panic should not be spread at all. So this is how we feel. The IS deemed to be university is an all-women university. Our Department of Journalism and Mass Communication is one of the lead departments where we have video production also besides print media information. I must share with you that there are many students of ours who are in this, like Palki Sharma, anchor of Gravitas, which is telecast on YON TV, has been a student of our Department of Mass Communication. Then there used to be a girl, Shalini Verma, who worked for Lok Sabha television for a number of years. I'm not in touch with her now, but I know the kind of name that they have brought to our institution. And Gravitas is one show which does not show you anything which you would not like to see. So today is high time, like people have started blaming the government, why IT rules, why to have a check on the media and whatever. But you cannot be, allowed to promote and propagate communal disharmony and other things and keep on talking only negativity about people, about the government, about individuals. I think this is something which we have to have a check on. I don't know what will be the source and how we would be able to do it, but this is the need of the hour. So I personally feel the new IT rules which the government has put into force, they should be discussed, and I personally believe they should not be misused, but yes, they should be used judiciously to curb the menace of fraudulent news, to curb the menace of tarnishing the images of people. So this is how we feel, and I think today's seminar that we have organized, it will dwell upon certain aspects of these nuances, and we'll be able to learn something out of this. So once again, I welcome our guests, Shri Rahul Mahajan, Shri Prem Prakash ji. I am told Prem Prakash ji's father has worked very closely with Vinoba ji and Mahatma Gandhi. This information I got from Shipra, so I must welcome you, sir. You have a different kind of upbringing, and I believe you stand for truth. And Abhishek ji, who is policy platform head and the founder of INDIC, I think all of you will be able to enlighten our students and others about various things that are going on now. So once again, I extend a very hearty welcome to all of you. And I think we are free. We can speak in Hindi or English, whatever is the best way to express, because I feel we'll be able to express ourselves better in our mother tongue. But it's up to you whether you want to speak in English or in Hindi, whichever language suits you. But I believe whatever you speak, that will touch the hearts of our students, and they'll become better journalists, better
mass media specialists in future. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words of enlightenment. To inaugurate the session, we have with us Mr. Rahul Mahajan, sir. Mr. Rahul Mahajan, sir, has been in the field of journalism for the last 23 years, having worked with the reputed media organizations like Jansatta and TV channels like Zee News, Aaj Tak, Star News, News 24, and Doordarshan. He was entrusted with covering some very important areas like Prime Minister's office, ruling party, parliament, defense and foreign affairs. He played a pivotal role in establishing Star News and News 24. We welcome you, sir. I request all the participants to kindly put your microphones on mute during the session. All the participants are also requested to kindly turn on their videos for lively interaction. In case of any query, kindly write in the chat box. Now, I request Dr. Shipra Mathur ma'am, Advisor, Department of Journalism and Mass Communication, to kindly take over the session. Thanks, Ritika, and thanks, Gupta sir, for setting stage for the debate for today. And I'll not use much of the speaker's time now. Rahulji, over to you, because the context has already been said by Gupta sir, and we all are really concerned about the change in environment in the country and new IT rules coming up. And in past years, I suppose the Supreme Court has constantly reminded and rather shown its concern that it is high time that some kind of regulation should be there, because it is a cause of concern for all of us that social media is spreading violence, pornography, and the stuff which is in the contraband to the positive atmosphere in the country. So this is a big concern, and whenever there are certain rules which are trying to regulate information or speech and expression, there is always high concern about whether this is to curtail our freedom of expression and how it will really into our private world. So I think this is a big concern, and there are other concerns specifically with relation to WhatsApp and Facebook and Twitter separately. So we'll discuss as we go along in this debate. So over to you, Rahulji, to inaugurate this e-symposia, and thanks for consenting to be a part of this. Thank you, Rahul. धन्यवाद शिप्रा जी। जैसा कहा गया कि हिंदी में बोले तो अच्छा होगा, तो मैं हिंदी में ही कहता हूँ सारा कुछ। एक तो धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी को मेरा प्रणाम। एक जो इशू जिस पे बात हो रही है और सारे मीडिया में है, शायद इसीलिए इतनी सारी बात इस पे की जा रही है, वो है जिसे हम IT न्यू रूल्स 2021 कहते हैं। बेसिकली ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसका अगर हम कहें तो पूरा जो नाम है, और ये काफी देर से चर्चा में था, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जो देखिए, एक मैं ये बात भी कहूंगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होते हैं, और जो टेलीविजन कंपनीज की वेबसाइट्स जो चलती हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, उन पर भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सवाल पहले इसको समझने का है कि आखिर ये रूल्स हैं क्या और ये किन पे लागू होते हैं। पहली बात, ये रूल्स हैं गवर्न करने के लिए सोशल मीडिया को, ये बात तो साफ है, सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किन पे लागू होते हैं? एक्चुअली ये रूल्स उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लागू होते हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट यानी अगर किसी के सब्सक्राइबर्स 50 लाख से ऊपर हो, 5 मिलियन यूजर्स हों, तो वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आता है। यहाँ पे एक धारणा ये भी है कि कहीं ये जो फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ही तो नहीं है, तो ये भी साफ करने की जरूरत है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। जो कि पूरी तरह से भारतीय प्लेटफॉर्म है, उस पर भी ये लागू होगा, क्योंकि वो 60 लाख यूजर्स का जो एक बेंचमार्क है उसे पार कर चुका है। अब ये बात आती है कि आखिर विवाद क्यों है,
आखिर क्या सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये जो है जिस पे ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप, जो कि अब व्हाट्सएप तो एक कानूनी लड़ाई भी इसको लेकर लड़ रहा है, तो आखिर क्या इश्यूज क्या हैं। एक पहला इशू ये है कि यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसे इन प्लेस करना होगा, यानी उसे लाना होगा। अब उसमें उनको एक भारतीय ऑफिसर, मतलब भारतीय व्यक्ति जो कि उनका रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होगा, उसे मतलब रखना होगा। दूसरा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, उसे रखना होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या ये कंपनीज इनको नहीं रख सकती हैं? अब यहाँ पर जो एप्रीहेंशन, जो डर या फिर जो विवाद उठता है वो ये है कि इन कंपनियों को ये डर है कि अगर ये सही से, क्योंकि उसमें कुछ गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई करनी है, या इस तरह से भी कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आपको ये कंप्लायंस करना है। इस तरह की बातें हैं कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो 15 दिन के अंदर उसको, एक तो 24 घंटे के अंदर उसका आपको संज्ञान लेना होगा और 15 दिन के अंदर आपको उसके बारे में कार्रवाई करनी होगी। इस तरह की बातें हैं उसमें, और महीने के महीने आपको जो भी ग्रीवियंस आ रहे हैं, जो भी आपको शिकायतें आई हैं, उनकी एक रिपोर्ट जो है देनी होगी। अब विवाद यहाँ आ जाता है कि अगर कोई कंपनी जो कि सोशल मीडिया कंपनी है वो ऐसा नहीं करती है तब क्या होगा। हमें ये जानने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक केस में, जो कि कई पुराना केस था, जिसमें एक IIT के लड़के जो ने एक पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है उसे एक वेबसाइट के जरिए बेचने की कोशिश की थी। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि ये जो वेबसाइट है या फिर इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनसे इंटरमीडिएरी कंपनीज कहा जाएगा, और ये कंपनीज थर्ड पार्टी कंटेंट जो कि उसके ऊपर डाला जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। तो इस तरह की जब बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो उसके बाद IT एक्ट में एक चेंजेस किए गए थे, और एक जो धारा 79 उसमें जो है वो सेक्शन 79 जो है उसको रखा गया था। सेक्शन 79 क्या करता था? सेक्शन 79 जो है प्रोटेक्शन देता है सारी सोशल मीडिया कंपनीज को किसी भी लीगल एक्शन के खिलाफ अगर कोई कंटेंट उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है। तो इसके साथ इन IT रूल्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज का ये कहना है कि अगर वो या उसके एम्प्लॉयज इसको फॉलो नहीं करते हैं, इन IT रूल्स का कंप्लायंस पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो जो प्रोटेक्शन उन्हें जो सेक्शन 79 के अंदर दी गई थी वो प्रोटेक्शन लागू नहीं रहेगी, यानी उनके खिलाफ भारतीय कानूनों के अंदर कार्रवाई की जा सकती है, कंपनी पर भी, कंपनी के एम्प्लॉयज पर। तो यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो उनका कहना है कि ये जो है ठीक बात नहीं है, ये कोई सही बात नहीं होगी। दूसरा, एक व्हाट्सएप जैसी कंपनीज या फिर सिग्नल जैसी कंपनीज, इन जो कि इस बात पर आगे बढ़ती हैं कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, सारी जितनी वहां पर बातें हो रही हैं, जो मैसेजेस है वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है उसका। वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि इन IT रूल्स में ये भी बात कही गई है कि अगर कोई मामला जो है वो देश की कानून व्यवस्था या फिर देश के आप कहें कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा हो जाता है, तो उसमें उन्हें इस मैसेजेस को ट्रेस बैक, यानी जो जिस व्यक्ति ने एक मैसेज को शुरू किया था या कंटेंट को शुरू किया था उसे ट्रेस बैक करके देना होगा। यहाँ पर इशू और गहरा जाता है कि इन जो ये रूल्स हैं इसमें पब्लिक ऑर्डर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो पब्लिक ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसको लेकर कंपनियों के भीतर काफी ज्यादा सोच है, या फिर उनको डर लगता है इनसे कि पब्लिक ऑर्डर को किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाएगी। एक जो बेसिक इशू व्हाट्सएप या फिर जो सिग्नल या इस तरह की कंपनियों का है वो ये भी है कि वर्ल्ड ओवर, विश्व भर में ये कंपनियां जो चलाई गई, वो इनका जो USP है, जो इनका खास बात है वो ये है कि वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस
मानते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका मैसेज कोई और तीसरी पार्टी नहीं पढ़ सकती है। तो ये जो प्रेमाइस है, बेसिक प्रेमाइस इन प्लेटफॉर्म्स का है, ये इन रूल्स के अंदर टूट जाएगा और वो ये कहते हैं कि ये सही नहीं होगा। और भारत में अगर ये अलाउ किया गया कि जो ट्रेस बैक, मतलब यानी ये उनको सूचना देनी होगी कि पहला व्यक्ति वो कौन था जिसने ये मैसेज शुरू किया, तो इसके जरिए बाकी देश भी इस मामले को शुरू कर सकते हैं या फिर बाकी देश भी इस तरह के कंप्लायंस को मांग सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के मन में है, इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स या सोशल मीडिया एप्स के मन में है, और जो इनको जो एप्रीहेंशन के तौर पर आगे आए हैं। अब विश्व भर में क्या होता है ये भी हमें जानना चाहिए। हम अगर अमेरिका की बात करें, जहां पर ये कंपनियां बेस्ड हैं, जहां पर इनके हेड ऑफिसेस हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पर जो है एक सेक्शन 230 करके है, जो कि इन सभी तरह की कंपनियां, ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्शन देती है किसी भी लीगल कार्रवाई के खिलाफ। अगर उस पर कोई मैसेज या फिर कोई इस तरह की बात लिखी जाती है या रखी जाती है जो कि या तो डिस्टर्बिंग होती है सोसाइटी के लिए, या फिर देश की सुरक्षा के संदर्भ में डिस्टर्बिंग होती है, या फिर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा कर सकती है। लेकिन वहां पर ये कंपनियां, ये भी हमें जानना चाहिए कि वहां पर ये कंपनियां इस तरह के मैसेजेस को हटाने का भी काम करती हैं खुद ही, जब उनको सरकार की तरफ से या बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से इस तरह की डिमांड की जाती है। अगर हम सिंगापुर की ही बात करें, जो हमारे पास करीब है, सिंगापुर में भी इस तरह का कानून है जो कि ये कहता है कि अगर कोई चीज सोसाइटी में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसे कानून के अंदर मॉडिफाई करने का रूल है। इसमें सरकार जो है या सरकार की जो अथॉरिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक मॉडिफाई करने का मैसेज जो है वो सोशल मीडिया कंपनी को देती है और इसे कंप्लायंस करना होता है। यूनाइटेड किंगडम में भी इस तरह की बात शुरू हो रही है और इस तरह के बिल पे काम किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट भी बनाया गया था, जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को इस तरह के कंप्लायंस करने के लिए रूल्स की बात कही गई थी। और इनमें भी ये बात थी कि सोशल मीडिया कंपनीज को इस तरह के मैसेजेस को हटाना होगा या मॉडिफाई करना होगा। यूरोपियन यूनियन में भी इस तरह की बात बहुत समय से चल रही है, जबकि जर्मनी जो है वो इसको मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन ये काफी देर से चल रही है कि किस तरह से जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्हें कंप्लायंस के लिए कि वो किसी कानून के अंदर काम करें जब इस तरह के इश्यूज हों, तो उस तरह का कानून बनाने की भी वहां पर भी बात लगातार चल रही है। तो ये जो पूरा इशू है, इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई ना कोई किसी भी चीज को गवर्न करने के लिए, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसके कारण हम ये मानते हैं कि जिस तरह अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस चल जाते थे कि बच्चा चोर और उसके लिए लिंचिंग हो जाती थी, या फिर किसी और कारण से जो है इस तरह के मैसेजेस शुरू हो जाते थे जिससे पूरी सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती थी। इस तरह के इश्यूज हुए हैं और इस तरह के इश्यूज के कारण काफी दिक्कतें पैदा हुई हैं हमारे देश में भी और बाहर के देशों में भी। इसलिए ये जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी, जैसे शिप्रा जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की बात कही थी कि किसी तरह के कंडक्ट रूल्स जो हैं वो आने चाहिए, और सरकार ने उसी को देखते हुए इस तरह के कंडक्ट रूल्स बनाए हैं। और कहीं पे भी, अगर ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि कहीं पर भी आप किसी कंपनी को किसी भी देश में अगर कोई बिजनेस करना है तो उसको वहां के कानूनों को मानना जरूरी होना चाहिए, और बिना किसी कानून को माने अगर इस तरह की कंपनियों को काम करने की इजाजत दी जाएगी तो शायद ये देश के लिए और देश सोसाइटी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। शिप्रा जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राहुल जी, एक पूरा पर्सपेक्टिव आपने रखा कि ये जो रूल्स आए, फरवरी में ये रूल्स आए थे, लेकिन बातें पिछले 4-5 साल से लगातार हो रही हैं और कोर्ट ने हमेशा ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है, और खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले पोर्नोग्राफी को लेकर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर अपना कंसर्न शो किया था और सरकार से जवाबदेही की भी अपेक्षा की थी कि क्या इन सारी गतिविधियों को रोका जाना, इन पर लगाम लगाया जाना कैसे संभव हो सकता है रूल्स के तहत। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रियाएं उसी का हिस्सा हैं कि कैसे रेगुलेट किया जाए और जो मैल प्रैक्टिसेस जारी हैं
अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस जारी हैं उनको कैसे भारतीय कानून के दायरे में लाया जाए। तो एक पक्ष तो ये है, और मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष ये भी है जो चिंता जताई जा रही है कि क्या सरकार जो है निजी जिंदगी में, क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा अगर आप कहें कि जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, वो यही है कि वो एक दूसरे के बीच का निजी संवाद है एक तरह से, या अपना संवाद है जिसमें दूसरे दखल अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डर है वो ये पैदा हो रहा है कि क्या सरकार निजी जीवन में दखलंदाजी करके और जो उनको नापसंद है चीजें, जो उनको नागवार गुजरती हैं चीजें, क्या उन लोगों की, उन संस्थाओं की, उन बातों की ट्रैकिंग भी इस पूरी आईटी रूल्स के मार्फत तो नहीं कर रही है। एक ये डर है। दूसरा ये है कि निश्चित तौर पर ये जो लीगल बैटल जो अभी शुरू हो गई है, और इस लीगल बैटल के पीछे जो सबसे बड़ा विवाद यही है कि जो व्हाट्सएप जो है उन्होंने मियाद मांगी, मियाद तय की सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी उस मियाद को न मानते हुए उनका, हालांकि इन प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट इस बात पे नहीं हो सकता है कि ये ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए। किसी की कंप्लेन है तो आपको उसको ओवरसी करना है, और इस मैकेनिज्म इंटरनल जो सेल्फ रेगुलेशन है उसके मार्फत बनाने की इस आईटी रूल्स में कोशिश की गई है। लेकिन खतरे कहाँ हैं, मेरे ख्याल में इस बात का भी अंदाज हमें होना चाहिए कि बहुत थिन लाइन होती है जो चीजें हैं कि हम दखल करें, लेकिन कहाँ तक दखल हो, और जो डर है उसको हम फैक्ट्स के जरिए, क्योंकि फैक्ट चेकिंग का भी मैकेनिज्म पर सरकार ये पूछ रही है कि अगर आपने फैक्ट चेकिंग का भी एक प्रोविजन किया है तो वो कौन लोग हैं जो कि फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो सरकार भी बहुत सारी चीजों को लेकर अभी आशंकित है, और इस आशंका के पीछे क्या है, क्या वजह है, इसको जानने के लिए मुझे लगता है कि अभिषेक जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल अकाउंटेबिलिटी को लेकर। कृतिका, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अभिषेक जी। Yes, ma'am. Mr. Abhishek Kumar Sir is the founding partner of Indic Associates. He is the passionate advocate of citizen and consumer interest in policy making. In the past, he was the director at Cuts International. He has also worked with Ernst & Young, Royal Bank of Scotland Foundation, Digital Empowerment Foundation, Members of Parliament, UN assignments, and as a senior news editor at CNN-IBN. He has handled several initiatives at the intersection of social and economic policy and led a wide range of projects on domains like energy, jobs, education, federalism, mobility, media, and industry competitiveness, amongst others. He has authored and co-authored several chapters and op-eds for mainstream publications and has edited 2 books besides making 50 documentaries on development issues in India. We welcome you, sir. Thank you, Kritika. I hope you can hear me. Yeah. Thank you, Kritika. Thank you, Shipra ji. Thank you, Rahul Mahajan ji. Thank you, Prem Prakash ji, Ashok Gupta ji. Thank you, everyone present over here for a wonderful introduction, and Rahul Mahajan ji, especially for laying out the entire perspective, which I completely agree with. Gupta ji also mentioned something about one of the students, Palki Sharma. Palki has been my colleague at CNN-IBN, so it was really great to hear that she was from ISS Jaipur. Really happy that your institute is taking all these conversations, discussions very, very seriously. I think Shipra ji and Rahul Mahajan ji ने जो अभी तक बोला उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, मुझे कोई उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. I will bring another perspective to this story, and this perspective is important because sometimes, most of the times, what happens is कि हम semantics में और details में इतना उलझ जाते हैं that we miss the bigger picture. So let's not mistake trees for the woods, and let's try and also focus on the bigger picture. The bigger picture is something that we have to understand in order to place the direction in which that we are going. So the fact is that we are having this discussion today, and the fact is that there have been so many discussions in the past,
And ever since the government came up with the guidelines, and even before that, these discussions have been happening, is a testimony of the fact is that this issue is far from being settled. There needs to be more discussion around this issue. Behind these guidelines, there is a criticism that a consultative process could have been far deeper. Well, be that as it may, the fact is that even now we have an opportunity to include more people into this discussion, and I'm really glad that this is happening through this platform. And why am I saying this? Because if you really look at the essence of these guidelines, they seem to present a backdrop of trust deficit. And that trust deficit is happening between citizens and government, citizens and businesses, businesses and government. So the entire triad of our society and economy seems to have a great degree of trust deficit. And one of the things to bridge this trust deficit is to have greater consultations. And I would say the consultations at 3 levels. The first is deeper. That means all layers, all scenarios, potential scenarios of policy must be examined properly. It has to be wider. That means a wider set of stakeholders have to be involved. 60% of India is still not connected to internet. So you have a potential population also that will eventually be affected by it. So what about them? Are we involving them into the conversation as well, as in when internet touches them? And the third is greater. That when you are engrossing, when you're engaging with these 2 dimensions, are you able to have a more mature discussion rather than picking on each other's specific faults or disagreements? And I think if we focus on these 3 elements for any policy making, not just this policy particularly, but for any policy, it is an opportunity to bridge that trust deficit and bring more people to buy in and reduce the kind of friction in policy making that we usually see. Having said that, I will touch upon 2 or 3 other dimensions which have often not been spoken with regards to these guidelines. The second dimension that I would like to touch upon is a dimension of competition. It is a marketplace of players who are providing us these services. These services, and when there are multiple actors, there's a rule of 3 that you need at least 3 big players and many small players to provide the most efficient market services for the best quality and the lowest price to the consumers. Competition angle is often ignored in this debate. And what I mean by competition angle, let me cite with an example of, and let me be very centrist. When I'm giving these examples, I'm not going with one side or the other, but this is just a very centrist devil's advocate kind of a proposition. If you have a provision which basically looks at originator, tracing the originator, which in normal life without digital interface you would want to really have, then it basically compromises the very USP of that platform. And that platform is not just for basic conversation between me and Shipra ji and me and Rahul Mahajan ji. That platform is also a platform which is very significant today for livelihood, extremely significant for livelihood and other opportunities. That platform is also going to be used to link up a lot of Kirana stores, for example. Now one can think about the economic productivity once that platform gets linked with Kirana stores and kind of backward economic activity that will churn because the demand will be such and easier to get. So when that happens, when the very security architecture of a platform gets, or as the platform says, gets compromised, then the trust of people with that platform is also bound to disappear gradually. So you are not only looking at what is in the present, but you are also looking at second, third, fourth degree of impact that it may have on the overall economy and economic well-being of the people.
The third element that I would want to pick on is that it is also going to have an impact. It may have an impact, and surely, because when we look at the economy and economics, there are two angles to it. One is a supply side angle and there's a demand side angle. The supply side angle is what you call in manufacturing economies of scale. You want to provide best to the consumer by playing with the volume, decreasing the per unit cost of a product or a service. In the network effects, which is what we see in the new economy, especially in ICT, information communication technology, what happens is that more number of people with more number of functionality to interact with each other increases the utility per user and increases the utility of that functionality per user without bringing down the price. So it is very important to understand that when you are looking at a policy which is substantively going to impact a market actor, the per user utility of a user that is using it is also going to go down because of the reasons that I just mentioned. The fourth is a very important thing, and that is something that we are seeing in almost all walks of life, and it's a bipartisan problem. It's not a BJP problem, it's not a Congress problem, it's a bipartisan problem. All parties know this, and despite that cannot arrest the temptation to put in more regulation, which is a fact. It's a known fact that India is a country with a very low state capacity, extremely low state capacity. And in such low state capacity, forming more regulations is only going to have the governance structure break down on its seams, because we really do not have the ability, the apparatus, the capacity, the people to govern so many different stretches and patches of regulation. And so this is just one, but there are millions and millions of that. So the more we get into this over regulation, too many regulations, the more we will become ineffective in regulating. And we all complain about governance failures. The reason behind complaining about governance failures are these. Perhaps the last point that I would like to touch upon is also the role of the business is to do business, and the role of the government is to enable businesses to do business and civil society to be a questioning society, so that there is a check and balance. Now, when you on one hand, so it's like a typical example of a right hand not knowing what the left is doing. On one hand, we want to reduce our compliance burden by 50 to 60% to get more investments. On one hand, we want to do ease of doing business. We want to go ahead with that. There are more than 350 indicators by DIPP on that. On the other hand, while there are bodies that are out there, we are adding compliance burdens on number of organizations, particularly in the tech space now. Now, why I'm saying this, all these things, is not to take any side, and I'm reiterating myself. Why I'm mentioning all these things is that these are things that we don't debate very, very often. So we need, when we're talking about these issues, we need to debate about these, and that's what I meant when I started my intervention, that we need a wider, deeper, and greater discussion on this, because this issue is far from being settled. On that note, and a lot of people have spoken about already in the past and on this panel also, about the role of judiciary, and the Supreme Court has said a number of things. As we speak, currently, it's an open survey right now, we're just about to conclude. We floated in last 10 days a Vox Pop, which all journalists know is the popular opinion of the people, a survey on content regulation and creative expression and these intermediary guidelines. 3 things I would like to highlight. I have right now 25 states, 65 cities,
Okay, 25 states, 65 cities, and the popular opinion with respect to two questions is something that I want to highlight, which basically says one of the questions with regards to these intermediate guidelines that was asked to them was, have you ever found some content on online media platforms objectionable? If so, what should be done about such content? What's overwhelming is this, that the least, it's a completely random survey with 50% women, 50% men, people of all age groups represented. The least, which is 20%, say that the government should have the power to remove any content it objects. So that is the kind of trust making the citizens and the people of the country are ready for. They want to build that trust with the state. The state must reciprocate, bringing the businesses also into that conversation. The second important answer that I would like to mention with regards to this is that ideally, should the government monitor, regulate, censor content on internet? Please share your view of the ideal situation. This is where it gets really interesting. It says it should only be concerned, that means government should only be concerned, 59% of people across 25 states, 65 cities say this. That government should only be concerned about removing illegal content or when it is directed to remove content by judiciary. Such is the trust in the established institutions. And this is the reason why these institutions were created, so that state capacity is not compromised. So I think, I have many points to mention, but I think we'll keep it for the second round, and I'll end this initial remarks over there. Thank you. थैंक यू सो मच अभिषेक जी. आपने जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. और एक बात जो आपने कही कि जो भरोसे का संकट जो देश में पैदा हो गया है, उसको भरना बहुत जरूरी है. और मुझे आपकी इसी बात पर एक बात जो मैं अक्सर स्टूडेंट से भी जब बात करती हूँ, तो वॉल्टर लिपमैन ने एक अपना जब पर्चा लिखा मीडिया और समाज के रिश्तों को लेकर, तब उन्होंने मीडिया को और जो इस तरह, क्योंकि आज के दौर का मीडिया अलग तरह का मीडिया है, लेकिन उस दौर में जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने बहुत अहमियत दी कि मीडिया जो है वो तय करेगा बहुत सारी चीजें. लेकिन उसके बाद जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर रहे जॉन डुई ने ये कहा, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि जब तक ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी के दायरे में ये बात कह रही हूँ कि नागरिकों को सशक्त करना इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है. और जो भरोसे को के संकट को जो पाटने का काम है, वो जब तक नागरिक सशक्त नहीं होगा, वो सूचना से समृद्ध नहीं होगा, वो सोचने के काबिल नहीं होगा, तब तक ये जो हमारी सूचना की दुनिया का जो भरोसा है वो एक दूसरे के ऊपर, और जो गवर्नेंस की बात है खास तौर से, उसमें जो एक दूसरे की दखलंदाजी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, वो स्थिति शायद ना आए जब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए. हालांकि मेरे इन सारी बातों पर कुछ सवाल भी आपसे रहेंगे, पर दूसरे स्पीकर्स हैं, एक बार उनको और सुन लेते हैं. प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं. अनुराग जी, आपका स्वागत है, आप भी मौजूद हैं हमारे साथ में. और मुझे समझ आ रहा है कि सुबह सुबह का जो रशअप आवर्स होते हैं मीडिया के, उसमें आप फंस गए होंगे. तो प्रेम प्रकाश जी हैं, मुझे लगता है कि पहले उनसे बात कर लेते हैं. कृतिका, आप अगर एक बार परिचय दे दें प्रेम प्रकाश जी का, फिर हम सीधे प्रेम प्रकाश जी से बात करते हैं. Yes, ma'am. Shri Prem Prakash sir has been in the field of journalism since 1992. He has worked for Sahara Samay, Rashtriya Sahara, National Dunia, and News Trust of India. During these 3 decades of journalism, he has specialized in conceptual and column writing. Currently, he is working as an assistant editor in Jansatta. We welcome you, sir. प्रेम जी, स्वागत आपका और मंच आपका. डॉक्टर अशोक गुप्ता, अभिषेक जी, राहुल जी, थोड़ा काम मेरे लिए इसलिए आसान हो गया है कि जिस परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं उसके
तमाम संदर्भों को आप लोगों ने तकरीबन स्पर्श किया है। पत्रकार से ज्यादा भाषा के एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा पक्ष नहीं बल्कि मेरी जिज्ञासा और मेरी चिंता कुछ दूसरी है। मुझे लगता है कि 60 के दशक में अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ था, बैक टू बेसिक्स, यानी भटकाव जब ज्यादा हो तो मूल की तरफ लौटना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद के हिंदुस्तान के राजनीति में इसी बात को चलो गांव की ओर ऐसा कह के लंबे समय तक कहा जाता रहा। यहां मूल सवाल अभिव्यक्ति का है। उसके जितने भी पक्ष और संदर्भ हैं, उसकी कोख में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति और उसकी अस्मिता का सवाल है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दे कैसे तय होने चाहिए, सरकारों की चिंता क्या होनी चाहिए, इसका नियामकीय अधिकार आखिर किसके पास हो। हम में से कोई ये बात इस ईमानदारी से कहने को तैयार है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में आज प्रजातंत्र का भी जिस तरह का स्वरूप है वो भाषाओं को बचाने का हिमायती है, वो अभिव्यक्ति की अस्मिता को सुनिश्चित करने का हिमायती है, या उसकी चिंता यह है कि अभिव्यक्ति का कोई सिरा कोई कोण उसको नुकसान ना पहुंचा दे। दुर्भाग्य है हमारे समय का, हमारे दौर का, और हम विस्मृतियों के शिकार बहुत तेजी से होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री एक सोशल मीडिया चलाने वाले साइट के मालिक के बगल में बैठकर अगर अपने संवाद को पूरे देश में लाइव कराएगा और बाद में जब AI नाम की चीज उसे यह बताएगी कि फेसबुक के कुछ डाटा आपके खिलाफ इस्तेमाल में किए गए हैं, उसके बाद आप यह जताएंगे इस देश के लोग कैसे बात करेंगे। उसके बाद आपकी चिंता यह होगी कि किसी देश में, वो जब राहुल जी बोल रहे थे तो मैंने रेखांकित किया उसी समय, ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि देश अगर हमारा है तो कानून भी हमारा चलेगा। माफ करिएगा, ये बड़ा आसान तर्क है और ये इन लोगों के लिए बड़ा कारगर हो जाता है। आपने जब बाजार खोला था, आप जब 1990 में उदारीकरण लेकर आए थे, अंग्रेजी से लेकर हिंदी का पूरा विमर्श उत्तराधुनिक विमर्श हो गया, तब तो ये कहने में बड़ा आसान लगता था कि दुनिया एक छतरी के नीचे आ गई है, कोई किसी से कहीं भी बात कर सकता है, संवाद कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन आज ये ढांचा इतना बड़ा हो गया है कि हमारे लिए मुश्किल बढ़ गई है। 2014 का इलेक्शन इस देश ने देखा और अखबार के कतरन आप उठा के देख लीजिए, कहा गया कि सोशल मीडिया के बूते इलेक्शन को कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया है। यह भी मान लिया गया कि जो पार्टियां पिछड़ रही हैं वो इसलिए पिछड़ रही हैं कि वो नए दौर के संवाद को नहीं समझ रही। अभी तो 1 दशक भी नहीं बीता है, हमारी चिंता यह कैसे हो गई कि यह मीडियम ही हमारे खिलाफ है। और नजदीक आए आप, जो नैरेटिव शब्द पिछले 2-3 साल से चलाया गया है, कितना अपमानजनक है कि एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को यह कहा गया है, कभी रैंप की दुनिया में हम लोग सुनते थे माल फंक्शनिंग, अब वो हमारे लोगों पे लागू हो रहा है और उसका टिक मार्क बदल जाता है।
ईमानदारी तब मानेंगे हम जब इसके लिए आपके मन में कोई पछतावा हो, कोई शोक। जिस संसद को नियम बनाने का, कानून बनाने का हक है, आप हमें किसी दिन के प्रोसीडिंग जरा उठा के देख लीजिए। अगर भाषा का और संवाद का यही स्तर है तो इन लोगों के भरोसे आप अपने संवाद की सुचिता को बहुत सुनिश्चित नहीं कर सकते। जो बात मैंने बैक टू बेसिक्स की कही, बात कहीं से कहीं आ गई। ज्यादा नहीं, महज 1000 साल पहले, तकरीबन 100 साल तक ये देश डिबेट करता रहा कि जब हम कुछ कहते हैं तो उसकी धार कहां से कहां बहती है। अभी कुछ समय पहले अभिनव गुप्त को याद किया गया था, जो हमारे ध्वनि के सबसे बड़े आचार्य माने गए, और मुझे याद है डॉक्टर नामूर सिंह का वो इंटरव्यू जिसमें उनके पसंद के आलोचकों की बात जब की गई, उन्होंने आखिर में कहा कि जब अभिनव गुप्त को हम पढ़ते हैं तो गौरव होता है कि हम उस परंपरा और संस्कृति का हिस्सा हैं जिसने अभिव्यक्ति को इतने मनोवैज्ञानिक स्तर पे और इतने सूक्ष्म स्तर पे समझा। अगर हम आज आगे बढ़ के ये सवाल करें कि आप को चिंता किस बात की है, गांधी कहते थे अंतिम आदमी की बात। इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर अभिव्यक्ति किसकी है? जाहिर तौर पे उस वर्ग की है, वो सत्ता में भी है और समाज में भी है, जिसके लिए आंकड़ा निकल के आता है कि 86 से 90% संसाधनों पे उसका अधिकार है। अगर अभिव्यक्ति की लड़ाई आपको लड़नी है, अगर इस बारे में कोई चिंता जतानी है, तो डॉक्टर कुमार विमल का बड़ा प्रसिद्ध लेख है, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक वंचितों की अभिव्यक्ति, उनकी भाषा, उनकी संपदा को आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक जस्टिस की लड़ाई हर स्तर पर बेमानी हो जाएगी। महज 2 से 3 साल के अंदर में ये मीडियम कितना तेजी से बदला है। और कमाल देखिए कि एक दुनिया भगवान ने बसाई तो हमने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई, हमने 2 विश्व युद्ध लड़ लिए, गुलामी जैसा एक कलंक भी हमने देखा। अब से अगर मौका मिले, जैसे मजाक में लोग शादी विवाह के बारे में कहते हैं कि पहली शादी तो आपाधापी में हो गई, अगर दोबारा कभी मौका मिले तो थोड़ा सोच विचार के निर्णय लेंगे। एक दुनिया अभिव्यक्ति की बसाई हमने पिछले 30 सालों में, लेकिन वहां भी दिमाग से लेके समाज तक की वो सारी गंदगी लाकर हमने रख दी जिससे हमें छुटकारा चाहिए था। अभी तो बहुत सभ्य तरीके से हम बात कर रहे हैं। हमारे लड़के, हमारी बच्चियां जब वहां जाती हैं तो बिल्कुल खो जाती हैं। उनके लिए कोई मार्गदर्शन वहां नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, और उनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। आप एक बार एक्स लिखें, गलती से 2 बार टाइप हो गया, आप देखिए कंटेंट की पूरी दुनिया बदल जाती है। इसका स्वागत किया गया था पूरी दुनिया में, और हम उन मंचों पे बैठे थे। डुंकेल प्रस्ताव के खिलाफ इस देश में लोग सड़कों पे उतरे थे। इसको स्वीकार करने के बाद अस्वीकार का कोई रास्ता है नहीं। आप एक टी शर्ट पसंद करते हैं और अगले दिन से आप कहीं भी खोलें तो 3 पॉपअप आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास आपके लिए ये सिलेक्शन है। हम इनसे कैसे लड़ पाएंगे? और वैसे भी एक तकनीक जो तरंग पे सवार हो, उसे कानून की किताब से माफ करेंगे नहीं लड़ पाएंगे आप। इसका एक ही तरीका है कि अगर नागरिकों की ताकत है, अगर प्रजातंत्र है, तो आप उसके विवेक को सबल करें, उसके निर्णय करने की क्षमता पे आप यकीन करें।
बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ इस संदर्भ में, ट्रस्ट डेफिसिट। एक बहुमत की सरकार अपने ही देश के कुछ ट्वीट से डर जाएगी? इसका जवाब तो उसे अगले चुनाव में देना चाहिए। पिछली सरकार में तो एक मंत्री हमारे यहाँ हुए जिनको ट्विटर मंत्री कहा गया, पूरा विदेश मंत्रालय ट्विटर पे चल रहा था। ये नेतृत्व के स्तर पे एक बहुत बड़ी स्फीति है इस देश में, और न सिर्फ इस देश में बल्कि दुनिया के बाकी जगहों पे भी। लेकिन उनके साथ बेहतर स्थिति यह है कि वो व्यापारिक मामले में वो पहले से पहले दुनिया के देश माने जाते रहे हैं। हम अभी भी तीसरी दुनिया के दाखिले से उबर नहीं पाए। अमेरिका में तो सारे के हेडक्वार्टर्स ही बैठे हुए हैं। हमारी दुर्गति यह है कि जिसको ताकतवर होना चाहिए, हमारे बीएसएनएल को ताकतवर होना चाहिए, हमारे एमटीएनएल को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन हमने दौर दूसरा देखा। हमने सत्यम का घोटाला इस देश में देखा। तो जब तक हम अपने सशक्तिकरण को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं होंगे, हम कम से कम कोई नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों के नज़र में अपने उत्तरदायित्व को थोड़ा ज़्यादा साबित करने के लिए जरूर कुछ काम कर लें। लेकिन इससे दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप यह तय करने लग जाएं कि बातचीत कैसे होगी। हाँ, यह तो तय होता रहा है कि बातचीत का स्तर कैसा होगा, और ये हमारे आइकन्स तय करते रहे, हमारे दौर के बेहतरीन नेतृत्व तय करते रहे। मुझे लगता है कि थोड़ी और आगे अगर बात होगी तो मुझे कुछ या कोई और सवाल रहेंगे तो कुछ ये मेरी जाहिर तौर पे मेरा पक्ष नहीं बल्कि मेरी कुछ चिंताएं हैं और इससे जुड़ी कुछ जिज्ञासाएं जो मैंने आपके सामने रखी। बहुत शुक्रिया प्रेम जी। मैं कृतिका से एक बार कहूंगी कि वो इंट्रोडक्शन अनुराग का दे, मेरे पीछे से बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बज रहा है, तो इस मैं अपनी बात कहूंगी, आप एक बार इंट्रोडक्शन। Mr. Anurag Punetha sir has been a prominent face of Indian TV news for more than 15 years now. He has been doing prime-time bulletins and mega shows of different formats on current topics on various channels. He has worked with news channels like Zee News, Sahara Samay, P7 News, News Express and Live India. He is presently a prominent face on India's parliamentary channel Lok Sabha TV. We welcome you, sir. बहुत स्वागत अनुराग जी। और आप आए थे उससे पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ आपको दे दूं कि राहुल जी ने, हमारे चांसलर हैं अशोक गुप्ता ने, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि यूनिवर्सिटी का भी हमारा कंसर्न है, शिक्षा जगत का एक कंसर्न है कि सोशल मीडिया जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, तो हमारी नाराजगी जो न्यूज़ मीडिया है उसको लेकर तो जाहिर तौर पर है कि जो हमें देखना चाहिए। गुप्ता सर ने ये भी हाईलाइट किया कि इस दौर में हम जो सरकारी चैनल हैं, दूरदर्शन जैसे चैनल हैं, उनकी खबरें जो है वो ज़्यादा भाने लगी हैं हमें, बजाय कि दूसरे जो प्राइवेट मीडिया हो गए हैं। तो एक जिम्मेदारी की बात है जो कि न्यूज़ की दुनिया से या संवाद की दुनिया से की जाती है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी ये कोशिश है कि हम इस तरह की संवाद प्रक्रियाओं के मार्फत जो आने वाली पीढ़ी है उसका मन बना सके, और जब वो संवाद की दुनिया में दाखिल हो तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी समझ के साथ, और इथिक्स का जो एक सेंस जो हमें लगता है कि बहुत अहम तरीका है जिससे कि वो जो भी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएंगी उसको ठीक से निभा पाएंगे। तो ये एक जिम्मा शिक्षण संस्थाओं का है और इसी संदर्भ में ये पूरा आयोजन हमने तय किया। राहुल जी ने अपने इनॉग्रल स्पीच में अपनी बात कही और उन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव दुनिया भर का कि कहाँ रेगुलेशंस के जरिए हर सरकार की करीब ये चिंता है
कि सोशल मीडिया को खुला तो छोड़ दिया है, लेकिन वो जिस तरफ दौड़ पड़ा है वहां पर किस तरह से जो देश के कानून है वो उन पर कैसे लागू हो और वो बिल्कुल बेकाबू ना हो जाए। तो इसका एक उन्होंने संदर्भ रखा और आईटी रूल्स जो नए आए हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जो पहले निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो निर्णय आए जो संवाद हुए उसका एक उन्होंने बड़ा कॉन्टेक्स्ट, बड़े व्यापक संदर्भ उन्होंने दिया। अभिषेक जी ने क्योंकि पॉलिसी की डोमेन में काम करते रहे हैं और अभिषेक जी जर्नलिस्ट भी रहे हैं और पॉलिसी डोमेन में भी काम करते हैं, तो अभिषेक जी का जो संदर्भ है वो एक व्यापक संदर्भ, उन्होंने एक आर्थिक संदर्भ भी दिया और उसमें उन्होंने जो बात बहुत बहस का विषय जरूर है, अभिषेक जी का ये कहना था कि ओवर रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नेंस की जटिलताएं बढ़ाए जाना क्या ये समाधान हो सकता है का ये एक बड़ा सवाल है कि सरकारें कोई भी हो लेकिन क्या हमें गवर्नेंस की जटिलता, क्योंकि एक तरफ, और मैं अभिषेक जी की ही इस बात में ये जोड़ रही हूँ कि एक तरफ जब ये नई पिछले 5-7 साल में ये बात होने लगी है कि कानून बहुत ज्यादा है जिनकी जरूरत नहीं है, तो कानूनों को कम किया जाए और गवर्नेंस का जो पार्ट है उसको सुदृढ़ किया जाए। तो ये एक जो ब्रिज बनना चाहिए नागरिक और सरकारों के बीच में, उस पर ज्यादा काम होना चाहिए, बजाय कि हम ये देखें इसने गलत किया उसने गलत किया, कानूनों पे कानून और रूल्स पे रूल्स बनाए जाएं। ये एक बात उन्होंने कही। अभी जनसत्ता से हमारे साथ में प्रेम प्रकाश जी हैं, उन्होंने एक इसको व्यापक और उन्होंने नाराजगी भी जताई कि जो व्यवस्था खुद ही संचार और संवाद की प्रक्रिया को समझने में अभी पूरी सक्षम नहीं है, वो अब ये तय कर रही है कि हम जो नागरिक हैं तो उनका जो विवेक है उन पर भरोसा ना करके अपना विवेक को उन पर का बोझ जो है वो उन पर डालने की कोशिश करें। तो ये कितना जायज है। और उन्होंने बैक टू बेसिक्स की बात कही कि हमें फिर से उस दौर में लौटना पड़ेगा जब हम मूल को समझें कि संवाद का मूल क्या है, और ये तब जाके ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, तो नए दौर का संवाद क्या होना चाहिए, माध्यम हमारे खिलाफ ना हो बल्कि हमारे पूरे विवेक को रिफ्लेक्ट करता हुआ हो। ये बात आप मौजूद ही थे जब प्रेम जी ने अपनी बातें सामने रखी थी। कुछ सवाल भी आ रहे हैं अनुराग जी, लेकिन आपका पक्ष पहले जानने के बाद में मुझे लगता है कि बाकी के जो भी, क्योंकि अच्छा है कि एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मुझे इस पैनल में ये सबसे खूबसूरत बात होती है कि हम अपने अपने ओपिनियंस के साथ में पुख्ता तौर पर ये बात अपनी रख सकें। तो अनुराग जी, आपने बहुत काम किया है मीडिया की दुनिया में और रोज नजदीक से आप देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेट कर रही है सारी चीजें। तो नए जो रूल्स हैं, आईटी रूल्स हैं, किस तरह से आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो मंच आप। धन्यवाद शिप्रा जी, और तमाम जो मेरे साथी इस मंच पर हैं उन सबका भी अभिनंदन। देखिए, ये बड़ा ही मौजूद विषय तो है ही, आपने इस विषय को चुना है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पर लोगों को, खासकर मैं मीडिया के जगत के जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उससे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिस्कोर्स बड़ा रहता है कि सरकार गवर्न क्यों करेगी, सरकार के गवर्न करने का बात प्रेस काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के ज़माने से चली आ रही है। मीडिया के एथिक्स, मीडिया के डूज एंड डोंट्स पर जितने भी कमीशन, जितने भी बातें होती हैं वो पिछले 20-30-40 सालों में हम देखते रहे हैं। अब सोशल मीडिया के इस फॉर्म में आने के बाद इसके यूज और मिसयूज की बातें हैं। अब ये व्हाट्सएप की उस प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करने जो जनवरी में उन्होंने लॉन्च की थी और कहा था कि 15 मई तक आपको इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई पॉलिसी आई, उसके बाद ये जो डिस्कोर्स चालू हुआ है, आप ये देखिए कि व्हाट्सएप कोर्ट में जाकर भारत सरकार के खिलाफ जाता है, उसके बाद ये डिस्कशन है। मैं इसको एक आम नजरिए से देखूंगा, गवर्नमेंट को कितना करना चाहिए, व्हाट्सएप को कितना अच्छा लिमिटेशन है। व्हाट्सएप एक तरफ तो अगर ये कहता है कि आपको आपके कुछ बिजनेस के मैसेज को हम शेयर करेंगे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड मान लीजिए इंस्टाग्राम, तो फिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए एक कॉमन मैन के लिए, एक ले मैन के लिए क्या समझें उसको, वो क्या समझेगा कि आपने एनक्रिप्टेड मैसेज का जो सबसे बड़ा दावा व्हाट्सएप करता है और जिसकी वजह से वो ट्रस्ट बना था, क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा कि कौन से मैसेज बिजनेस कैटेगरी में होंगे और बिजनेस चैट के साथ में वहां जाएंगे और उसको शेयर किया जाएगा, और प्राइवेट जो मैसेजेस हैं वो आपके एनक्रिप्टेड रहेंगे। ये जो फाइन लाइन है, हु विल डिसाइड एंड हु विल मॉनिटर, हु आर यूजिंग दिस डेटा? प्रॉब्ली जो व्हाट्सएप है उसके पास तो डेटा जा ही रहा है। अब आप उसको जैसे ही ये बात कोर्ट में पहुंची तो सडनली फिर चेंजेस ऑफ उनका जो एटीट्यूड है वो ये आया कि नहीं ठीक है,
हम तो गवर्नमेंट से तो लड़ेंगे, लेकिन हमारी प्राइवेट पॉलिसीज को अगर कंप्लाई को जो लोग नहीं भी करते हैं, उनके जो यूजेज है, एप्लीकेशन यूजेज पर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले धमकी ये थी कि आपका 15 मई के बाद शायद हो सकता है अकाउंट के कुछ फीचर्स बंद कर दिए जाएं, या फिर हो सकता है कि आपका ब्लॉक कर दिया जाए। अभी उनके उस पॉलिसी में, उनकी कुछ एटीट्यूड में बदलाव है। सवाल ये नहीं है कि व्हाट्सएप क्या सोच रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न क्या है, या सोसाइटी का कंसर्न क्या है। सोसाइटी का बड़ा कंसर्न इस बात को लेकर है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया अपने 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 रास्ते से भटकता हुआ दिखाई देता है देश में, उसको लेकर डिबेट होती है कि मीडिया का स्वरूप इस समय क्या है। मीडिया प्रो गवर्नमेंट है कि अगेंस्ट गवर्नमेंट है, इस कदर डिवाइडेड है कि एक आदमी, एक मीडिया संस्थान दोनों की बातें करते हुए लगता है तो ऐसा लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। इधर यू आर प्रो गवर्नमेंट और यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इधर यू आर ए गोदी जर्नलिस्ट और यू आर सो कॉल्ड वेरी ट्रू जर्नलिस्ट। देश इसमें बटा हुआ है। देखिए, दुनिया में खतरा, दुनिया के तमाम देशों में खतरा इग्नोरेंस का शायद नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का शायद उतना नहीं है जितना मिस इन्फॉर्मेशन का है, डिस इन्फॉर्मेशन का है। दुनिया में बड़े बड़े देशों ने, खासकर अगर हम कोल्ड वॉर के दौर की अगर बात करें, तो उस दौरान अमेरिका और सोवियत ब्लॉक में सबसे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन एम्बेडेड जर्नलिज्म का जो चलन था, उन्होंने जो शुरू किया था, उसने किस तरह से दुनिया को बांटा, किस तरह से एक ब्लॉक को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरलाइजेशन, ओपन सोसाइटी, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के नाम पर अमेरिका को एस्टेब्लिश किया, और किस तरह से पूरी सोवियत ब्लॉक को एक तरह के विलेन के तौर पर पेश किया। ये बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इस हिस्ट्री को, जो इस पूरे 70 सालों के, यानी कि 45 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिकन परसेप्शन रहा दुनिया में, उसको आप देख लीजिए। ये बड़ा ही फाइन तरीके से किया गया था। अब बात आती है सोशल मीडिया ने जो एनार्की फैलाई है, वो हमको एम्पावर भी किया है, नो डाउट आज एम्पावर किया है, लेकिन उस एम्पावरमेंट का, उस पावर का, उस ताकत का जिस तरह से मिसयूज भी होना शुरू हुआ है, तो क्या दुनिया के देशों में चिंताएं नहीं है कि इसको थोड़ा कर्टेल किया जाए, थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, और इसको कम से कम आपके देश के नुकसान में, आपके देश, समाज, आपके लोगों के नुकसान के लिए ना हो पाए, और ये सो कॉल्ड कंपनीज हैं जो कि अपने जो चलाती हैं, उनका मोनोपोली नहीं हो। आपको पता है अमेरिका में ये डिबेट है कि फेसबुक को डिसइंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक, उसमें व्हाट्सएप है, उसमें अब इंस्टाग्राम है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि किसी भी देश की सरकारों से ज्यादा ताकतवर है। फेसबुक और सोशल मीडिया ने ही मिडिल ईस्ट में 2011 से लेकर जो रेवोल्यूशन पैदा किया था, उसके बाद जो एनार्की फैली थी, वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। तो सरकार अगर इस दौरान सोच रही है, तो इसका मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए। सवाल यह है और खतरा यह है कि इसका सरकारी इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए। सरकार क्या टोटल कंट्रोल करे? क्योंकि खतरा तब रहता है कि जब सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करेगी तो उसका मिसयूज कर सकती है। सरकार को लगेगा कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो हम इसको कंट्रोल करेंगे, ब्लॉक करेंगे, या फिर आपके खिलाफ कुछ प्रोसिक्यूशन और लीगल एंगल लिया जाएगा। इस पर डिबेट होनी चाहिए कि उस मैकेनिज्म में कौन कौन लोग होंगे। क्या कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, क्या कुछ इंडिपेंडेंट लोग हो सकते हैं, क्या कुछ क्रेडिबल लोग हो सकते हैं। क्योंकि आप ये बात मानिए कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने में प्रेस काउंसिल या तमाम जो यूनियंस हैं या तमाम जो बॉडीज रही हैं, वो अभी तक बहुत इफेक्टिव नहीं रही हैं। इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी हद तक सफल नहीं रहा है। इस देश में पत्रकारों ने भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाने के लिए कई मौके दिए हैं। लिहाजा अगर सोशल मीडिया ताकत है, तो सोशल मीडिया की ताकत को बहुत सही तरीके से चले, वो पावर बने, वो एनार्की का साधन ना बने। क्योंकि एनार्की उसने क्रिएट करी है देशों में, ये रिटन प्रूफ है, ये एविडेंस है हमारे सामने। तो मुझको लगता है कि डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि सरकारें क्यों कंट्रोल कर रही हैं। सरकारें पहले भी, मतलब इस सरकार से पहले की सरकारों ने भी इस दिशा में काम किया है, इस दिशा में डिस्कशन को आगे बढ़ाया था कि भाई होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन किस तरह का हो, रूल्स किस तरह के हों, ये बात हुई थी। अब जाकर अगर सरकार ये कहती है कि आपको कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा, भाई अमेरिका में पिछले साल डिबेट इस बात को लेकर थी कि रशिया ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से उसको चुनावों को प्रभावित किया। ये चुनावों को प्रभावित हमारे करते हैं, किस तरह से परसेप्शन डेवलपमेंट होता है, किस तरह से हैशटैग ट्रेंड करते हैं, ये अब मोस्ट ऑफ द पीपल को, लोगों को पता है। लिहाजा जो छात्र है, आप ये बात मानिए कि जो भी इन्फ्लुएंस है, हम एज ए टीनेजर, खासकर जो 17, 18, 15, 14 साल से लेकर अगर मान लीजिए 30, 35 साल तक की जो एज होती है, वो बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है। उस दौरान
जिसको हम पसंद करते हैं उसके द्वारा किए गई बातों को, उसके द्वारा लिखी गई बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। वो किसी भी पक्ष में हो सकती है, और हर आदमी थोड़ी बहुत किसी न किसी आइडियोलॉजी से ड्रिवन होता है। वो सरकार विरोधी हो सकता है, वो सरकार समर्थित हो सकता है, वो व्यक्ति समर्थित हो सकता है, वो तमाम चीजों से हो सकता है। लिहाजा ऐसे लोगों का अगर वो रोल इंटैक्ट नहीं रहा, ऐसे लोगों ने अगर अपने उस जिम्मेदारी को छोड़ा, तो मुझे लगता है कि कलेक्टिवली इस दिशा में सोचा जाना चाहिए कि रूल्स हों, बिल्कुल रेगुलेट हों। दुनिया की बड़ी कंपनीज इस दौरान जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जाल बिछाया है। मैं इस दौरान एक बात हमारे पैनलिस्ट ने कही थी कि लिबरलाइजेशन के बाद में जो कुछ भी तरक्की हुई और पिछले करीब 15 सालों से सोशल मीडिया ने जो अपना प्रभाव जमाया, पैर जमाया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस देश की सरकारों ने, इस देश के बिजनेस कम्युनिटी ने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना, वो हम अपना डेवलप करते हैं। वो डेटा के आज हम लिटरली एक तरह से या तो लड़ रहे हैं या उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और या अब जाकर हम लीगल उनको धमकी दे रहे हैं। और जैसे हम लीगल धमकी देते हैं कि आपको हम बंद कर देंगे, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको लोकल सर्वर यहाँ रखना पड़ेगा, तो सडनली इस देश में डिबेट हो जाती है। नहीं, बहुत से लोगों की तो रोजी रोटी है, और ये सच बात है। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए बहुत से लोग अब अपना काम कर रहे हैं, उससे कुछ अर्निंग भी करते हैं उससे। अगर आप बैन करेंगे तो उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट इस दिशा में मिजरेबली फेल रही कि इस तरह के प्लेटफॉर्म इंडियन ओन्ड कंपनीज, इंडियन ओन्ड एंटरप्राइजेज होते और वो इस दिशा में बढ़ते। न सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, न सिर्फ वो हिंदुस्तान लॉस को मानते, संभवतः यहाँ के इथॉस को भी मानते। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर इस दिशा में एक इफेक्टिव, बिना किसी प्रेजुडिस के अगर ये कदम उठाए जाते हैं, और जिसमें इंटेंशन लॉन्ग टर्म हो, इस देश की भलाई के लिए हो, इस देश की आइडियोलॉजी के लिए ना हो कि ये मैं लेफ्ट हूँ या मैं राइट हूँ, लेकिन अगर उस दिशा में हो और उसमें कुछ बड़े ही फेयर बैलेंस तरीके से जो दिखे भी, ऐसे लोगों को शामिल करते हुए ऐसे रूल्स बने जिसमें कि वो मैकेनिज्म डेवलप हो कि दुनिया की कोई कंपनी अगर यहाँ पर आएगी और उसको अगर हमारा डेटा चाहिए, हमारे लोगों के तमाम मैसेज चाहिए, तो यू हैव टू कंप्लाई, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दिस एयरप्लेस। अगर ऐसा हो पाया तो मुझे लगता है बहुत जरूरी होगा। हमारी आने वाली जनरेशन संभवतः एक सही इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। अभी इस कदर खतरा है लोगों के सामने। आप ये देखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ा पेजोरेटिव एक टर्म है कि आप अच्छा कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली आपको? ओह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? हम सोशल मीडिया पर दिन रात रहते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर हमारे मन में सवाल होता है। अब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हो चुकी हैं। देश का मिनिस्ट्री मीडिया इसी सोशल मीडिया से ड्रिवन होने लगा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा। सरकार कैसे करती है ये बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन होना चाहिए। मैं इस बात की वकालत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने बहुत क्रिस्प तरीके से और सारी बातों को समाहित करते हुए जो बात कही है, उसी के आगे मुझे लगता है कि ये बात अब क्योंकि 10-15 मिनट ही है हमारे पास में और डिबेट को, तो मैं एक बार बच्चों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, और फिर मैं अभिषेक जी, राहुल जी अगर हैं तो एक बार उन तक जाऊंगी कुछ बातें जो उठी हैं उनको लेकर। पारुल हैं स्टूडेंट, उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल डेटा प्राइवेसी इश्यूज दैट हैव सरफेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, कि डेटा प्राइवेसी के क्या इश्यूज हैं, इस पर उन्होंने सवाल किया है। और देश में क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की भी बात हो रही है, तो सब चीजें एक साथ चल रही हैं देश में कि पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन कैसा किया जाए, रेगुलेशन कैसा किया जाए, तो ये एक सवाल उन्होंने पूछा है। वानी प्रिया ने पूछा है, तो अभिषेक जी मुझे लगता है पहले पारुल वाला सवाल आप अगर एड्रेस कर पाएं, और दूसरा सवाल मैं पढ़ देती हूँ। नमस्कार ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट केम अप वाज द पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप व्हिच वाज हार्मिंग द प्राइवेसी of the users, and therefore this topic came into limelight. The public would want the government to bring in policies which would help provide privacy protection, and now when we see this aspect of the new rules just for the sake of framing an opinion what went wrong, that it is difficult for the government to understand to what the citizen want. तो ये दो सवाल हैं। अभिषेक जी, आपका रिस्पॉन्स अगर इन पर हो, और जो बात अनुराग जी ने और प्रेम जी ने भी उठाई है उस बात पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर पाएं तो और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ में हमारी बात समझ आएगी।
थैंक यू शिप्रा जी। ये क्वेश्चंस के जवाब काफी बड़े होंगे, तो मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। कोविड-19 से रिलेटेड जो डेटा कंसर्न्स हैं, फ्रैंकली आई डोंट नो, बट एक चीज मैं बता सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अभिषेक जी एक सेकंड issues- इंटरवीन कर रही हूँ। अभिषेक जी एक सेकंड इंटरवीन कर रही हूँ। राहुल जी को क्योंकि अब दूसरे ऑफिस की और जी। काम धाम है तो उसके लिए निकलना है। तो राहुल जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। आगे भी हमें लगता है कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने दफ्तर तक, तो सेफ रहिएगा और हम लोग के साथ में आगे भी बने रहिएगा। शुक्रिया राहुल जी। मुझे शामिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी अभिषेक जी। जी Thank अभिषेक you. So, see, COVID-19 related privacy issues are not something that I'm actually very equipped to answer right now. But the fact is that irrespective of COVID, the fact is that health is a very, very critical personal issue. And the information related to health has been floating around. Products have been designed to serve the needs of people based on what kind of data collection has been happening based on what you're choosing. I have a 2-year-old baby and I have a camera that watches that baby. And who's collecting that data? These are important concerns, and the debate is still out in the open on these issues. Similarly, with COVID-19, I think just the way we are having this discussion, we need to have that discussion separately. I'm not well equipped to answer that question right now. I just want to quickly, very quickly react on 2 points. Probably will take 30 seconds each. One is the point that Anurag ji have raised at, और यही मेरा पॉइंट वो थोड़ा आई थिंक मिस हो गया था जब मैं बताना चाह रहा था। जो प्रतिस्पर्धा का पॉइंट है, कंपटीशन का, व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिस्कशन इज बिकॉज देयर इज नो कंज्यूमर विदाउट अ प्रोड्यूसर एंड देयर इज नो प्रोड्यूसर विदाउट अ कंज्यूमर। ये भी बहुत जरूरी है जब हम इस विषय पे आज बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ओवर रेगुलेशन की वजह से हम इस तरह का एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना दे जिसमें आने वाले टाइम पे मोनोपोलीज ही हों। वी नीड, बिकॉज एंट्री बैरियर्स on social media for normal companies is very high because it is free. There are only few players, and these few players need to exist to take on each other in order to have the best consumer welfare. So what is not apparent, what is on the horizon, what kind of consequences it may have, these regulations may have on competition is very important to understand for consumer welfare. And lastly, I would like to say, जो मेरा मेन मुद्दा था, सॉरी मैम, आई एम फॉरगेटिंग वन क्वेश्चन, बट मेन मुद्दा वो अनुराग जी की बात से याद आया, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, जो बड़ा मुद्दा है जिसको चैलेंज। सर, बात सिंपल सी ये है कि अगर आप रेगुलेट करते रहेंगे तो मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। जितना रेगुलेट करेंगे उतने लूप होल्स निकलेंगे और उतना डिस्ट्रस्ट फैलेगा। The point I'm trying to make is that today the answer is not the law. It is a need to have a new compact between citizens, businesses, and government without the law. And that is the question that we need to answer, because our state capacity is completely absent to contain, to have governance based on regulation. That is what the limited point I want to say. So, मैम लास्ट क्वेश्चन अगर रिपीट करेंगे तो एक टिप्पणी उस पे भी दे सकते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा था। इसमें ये कहा कि IT rules तो आ गए हैं। Now when we see the aspect of new IT rules, just for the sake of framing an opinion, what went wrong, that it is difficult for the government to understand to what the citizen want. Citizen क्या चाहते हैं, सरकार अगर नहीं समझ पा रही है, तो ये जो एक डिस्ट्रस्ट की ही बात मुझे लगता है कि बात इन्होंने कही है कि रेगुलेशन लाने की बात हो रही है, लेकिन क्या नागरिक क्या चाहते हैं उसको क्या सरकार समझने में सक्षम नहीं रही है। बिल्कुल सही बात बोली। अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि व्हाट्सएप और सरकार के बीच में 2 मुद्दों पे डिस्प्यूट चल रहा है। एक तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा आपका ट्रेसेबिलिटी। दोनों ही प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक केस में व्हाट्सएप सरकार को बता रही है कि क्या प्राइवेसी की डेफिनेशन होनी चाहिए, दूसरे केस में सरकार व्हाट्सएप को बता रही है क्या प्राइवेसी की डेफिनेशन होनी चाहिए। अब आपसे मेरा यह सवाल है कि इसमें आम जनता की आवाज कहां है? राइट? सो दैट इज व्हाई वी नीड
again I'm coming back to the same discussion. This issue is far from being settled. This needs greater, deeper, wider discussion to build that trust, to have, and it will not, again I'm saying, the answer will have to be in flexible regulation rather than rigid and penal provisions. Thank you. अभिषेक जी, आपने जो बात कही, मैं एक बार प्रेम जी तक जाती हूँ और फिर अनुराग जी आपसे लास्ट रिस्पॉन्स में लूंगी कि एक सेल्फ रेगुलेशन की बात बार बार कही जाती है कि क्या खुद का जिम्मा हम समझने लगे, जिम्मेदारी नागरिक अपनी समझने लगे, बिजनेसेस अपनी समझने लगे, और एक सेल्फ रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है। तो अनुराग जी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया, जो हमने भी अभिषेक जी के जो मंच है इंडिक के मार्फत, ये एक डिस्कशन जब IT रूल्स आए थे तब हम सब चर्चा में शामिल हुए थे इस बात को लेकर। तो ये बात जरूर आती है कि सेल्फ रेगुलेशन के जो भी हमारे प्रेसिडेंसेस हैं, जो अभी तक हमारे जो अनुभव हैं देश में, वो बहुत अच्छे अनुभव नहीं हैं। सेल्फ रेगुलेशन के बावजूद, उन सारे मैकेनिज्म के बावजूद, जो डिस्ट्रस्ट का मामला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो एक जिम्मेदारी वाला भाव है वो अभी तक नहीं जागा है, और एथिक्स की तो एक फाउंडेशन होनी चाहिए वो अभी तक भी हमें नजर नहीं आ रही है। तो कितना साल आपको लगता है कि ये सेल्फ रेगुलेशन की बात हम करेंगे, क्योंकि लॉ की या गवर्नेंस सेल्फ रेगुलेशन की बात तभी आती है जब हमें लगता है कि हम इन तरीकों से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सहज तरीका है वो हमारे बूते का नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है। पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें पता है कि वो कारगर नहीं थी। आज भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पेपर टाइगर विद रबर टीथ ही कहा जाता है। तो वो ना काट सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना आपको रोक सकता है, ना जगा सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं की क्या भूमिका है, क्या यूटिलिटी है? तो अभिषेक जी का सवाल बड़ा है, लेकिन समाधान कहाँ पर है? प्रेम जी, अगर आप बात कहेंगे और संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास 5 मिनट का है, तो उसमें, और राखी गुप्ता मैम है जो रजिस्ट्रार है हमारे यूनिवर्सिटी की, वो भी मौजूद हैं। स्वागत राखी मैम का। जी प्रेम जी। कुछ समय पहले एक किताब आई आशीष नंदी की, इंटीमेट एनिमी, जिसका अभय कुमार दुबे ने जिगरी दुश्मन करके अनुवाद किया। इस पूरे दौर में जब से ये मीडियम सक्रिय हुआ है, इसने अपने मुताबिक रातों रात कई चीजें बना ली हैं, और उसमें सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी इतनी सारी बात हम कर गए, मुश्किल से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, न सिर्फ यह देश बल्कि दुनिया नेट न्यूट्रलिटी के लिए बहस कर रही थी। चीजें इतनी तेजी से बदल दी जा रही हैं कि मूल चिंता का कंपास कहाँ होना चाहिए ये हम नहीं तय कर पा रहे हैं। जो बात बार बार सरकार और कानून को लेकर हो रही है, मेरा भी बार बार यही कहना है कि अच्छा या बुरा, जो नागरिक का कंसेंट है वो इस पूरे बहस में स्टेक होल्डर बन के आना चाहिए। अभी तक जहां संकट हम हम देख पाते हैं, वो यह देखते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल, सरकार, उसकी कुछ असुविधाएं हैं जिसके कारण से वो रेगुलेट करना चाह रही है। कहीं कोई कार्टून बन जाता है, वो बाल ठाकरे की मौत के निधन के समय से लेकर, यूपीए की भी सरकार थी, साउथ में ये हुआ था। तो सरकार का डिस्कम्फर्ट अगर हमको इस दिशा में ले जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें नागरिक कहीं नहीं है। नागरिक के साथ जो एक बड़ा संकट ये है कि बहुत पहले नागरिक को उपभोक्ता में इन लोगों ने बदल दिया है, बाजार के पूरे तंत्र ने बदल दिया है। तो एक नागरिक को भी रिडिस्कवर करने की चुनौती है हमारे पास। तो चूंकि लड़ाई बड़ी है और जटिल है, तो हमको इसमें बहुत धैर्य के साथ और बहुत चेतनशील तरीके से उतरना पड़ेगा, नहीं तो हम इसके या उसके हाथ के कठपुतली बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो अभिषेक जी भी जिस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में, उन्होंने ये बात अपने पहले वक्तव्य में भी कही, इस पूरी प्रक्रिया में जो कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए वो नदारद था। हालांकि जिक्र हम ये भी सुनते हैं अभिषेक जी की राज्यसभा में एक कॉलिंग मोशन लाया गया था, इस पे चर्चा हुई, बहस हुई, और इसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो किस तरह के कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हमारे दिमाग में हैं
कि ये जरिया हो सकता है जिसमें कि ज्यादा, क्योंकि अब जो अनुराग जी सवाल मेरा आपसे आखिरी आपका कमेंट हो जाए कि फिर अभिषेक जी आपसे रिस्पॉन्स और लेंगी। तो अनुराग जी, ये जो मामला है कि नागरिक का पक्ष जो है वो कैसे, आपने भी ये बात जताई कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें नागरिक जो है उसकी भागीदारी, समझदार लोग जो है जो इस प्रक्रिया को, संवाद की दुनिया को बेहतर समझते हैं, उनकी भागीदारी नदारद रही, ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक रेगुलेशन का एक तरीका बना दिया गया जिसमें क्या पक्ष हमारा बड़ा पक्ष है, जो युवा है, खासतौर से जो सोशल मीडिया का कंज्यूमर है, उसका पक्ष पूरी तरह से नदारद है। और इसी बात को लेकर जो बात अभिषेक जी ने भी कही कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, और जो प्रेम जी ने भी कही कि जो भरोसे का संकट है उसको तो हमने पाटा नहीं, और अब ये सारी प्रक्रियाएं, तो वो समाधान तो शायद हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनुराग जी, आपका क्या कहना है कि नागरिक का पक्ष कैसे इसमें शामिल होना चाहिए? देखिए, बड़ी विडंबना है और ये बड़ा मिसनोबर है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि नागरिक का पक्ष, सरकार की मोनोपोली, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर खतरा, अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो इस देश में किस तरह से चीजें सरकारों के कंट्रोल में आ जाएंगी। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जब संसद कोई लॉ पास करती है, वो तमाम कमेटी से निकल कर आता है, तो उसके लिए वो वोटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। इस देश में वोट नहीं करते हैं कि इसमें ये हमारे क्लॉज हैं और इन क्लॉजों को हम हटा रहे हैं। वो अपनी समझ के हिसाब से कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द नेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, वो बिल पास करते हैं। हर बार जाकर किसी नागरिक से नहीं पूछते हैं कि अच्छा इसमें ये कर लूं या ये नहीं कर लूं। अगर ऐसा करेंगे तो इस देश में कभी कानून बन ही नहीं पाएगा। या तो आप ये करिए कि इस प्राइवेट पॉलिसी पर देश में पूरी तरह से एक जनमत करा लीजिए, लगेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेंगे। या फिर आप एक ऐसे लोगों के, जिस देश में साक्षरता को लेकर अभी पूरी तरह से हम गोल नहीं कर पाए हैं, आप यकीन मानिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, यहां पर बैठे तमाम लोग, जब हम व्हाट्सएप को हमने डाउनलोड किया था आज से 8-10 साल पहले, उसकी जो पूरी की पूरी क्लॉज आती है, पूरी की पूरी उनकी जो टेक्निकल चीज होती है, डू हैव टू एग्री, जिस पर आपको क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये तमाम एप्लीकेशन क्या हम पढ़ते हैं? मैंने तो नहीं पढ़ा, और मेरे तमाम लोगों ने, परिवार के दोस्तों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो शायद उनका एक लीगल होता होगा जो वो अपने संभवतः किसी और चीज को ध्यान में रखते हुए। हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस था कन्वीनियंस। एक कंज्यूमर के तौर पर अगर ये सोसाइटी डेवलप हो गई है तो हमको एक सबसे बड़ी बात, एक कस्टमाइज और एक ऐसा चीज चाहिए जो कि हमारे काम आ सके। सेकंड चीज आती है कि इसके इस्तेमाल के दौरान हमारी कुछ प्राइवेसी मेंटेन रह सके, हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारी अपनी कुछ चीजों को मेंटेन कर पाए। ये सरकारों का काम होता है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम होता है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, इस देश के सिस्टम का काम होता है। डेमोक्रेसी में कोई अथॉरिटेरियन चीज हो जाएगी? आपने लॉ तो अभी आया नहीं है, उससे पहले ये पूरा हल्ला मचा देना, ये पूरा एक आडंबर खड़ा कर देना कि इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे इस देश में अगर कोई ऐसी पॉलिसी डेवलप हो जाती है जो कि मोनोपोलिस्टिक हो जाए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उसको चेंज कर सकती हैं। इस देश में अदालत है, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। पहले आप उसको लागू तो करो। लागू करने से पहले अगर चीज है, आपको पता है, दुर्भाग्य रहा कि इस देश के तमाम पार्टियों ने और सरकारों ने छोटी चीज पर अपनी लड़ाई का केंद्रित कर लिया। किसी ने किसी का कार्टून बना दिया, गिरफ्तार कर लो, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लो, उसको हैरेस करो। आपको पता है कि ट्विटर और फेसबुक पर जो ट्रेंड करते हैं वो विदेशों से होते हैं। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसके बाद अभिनंदन को पकड़ा, तो जितने भी वो जो पीस लविंग जेस्चर्स ट्रेंड कर रहे थे उस दिन कि रिलीज अभिनंदन, नोबेल प्राइज टू इमरान खान, वो सब पाकिस्तानी ड्रिवन थे। ये आपको इस गेम को समझना पड़ेगा कि गेम खेल कौन रहा है। एंड वी आर द पपेट्स एंड पपेट्स आर फाइटिंग कि इस देश में नहीं ऐसा मत करो, ऐसा होने दो। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रहनी चाहिए भैया। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच, देश के नागरिक जो कि इंटरनेट यूज करते हैं, उनको तो पता होती नहीं है, उनके लिए कन्वीनियंस का साधन है। उनको एजुकेट करते हुए, इस देश के कलेक्टिव उसको हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग तय करें, सिविल सोसाइटी तय करे, पॉलिसी मेकर्स तय करें कि हाँ भाई हमको ये खतरा है, खतरे को पहचानते हुए कुछ कदम उठाएं। ये कदम के प्रभाव और इसको भी ध्यान में रखें और कम से कम एक पॉलिसी लेकर आए। आपको ये मानना पड़ेगा इंटरनेट जाने वाला नहीं है। इंटरनेट के साथ साथ एक और चीज होती है, वो डीप वेब और डार्क वेब। उस पर क्या क्या चलता है ये बहुत से लोगों को पता होगा। इंटरनेट यूज करने वालों से ज्यादा लोग वो हैं जो कि वहां पर काम करते हैं। तमाम इलीगल चीजें होती है। खतरा कहां तक चला जाएगा ये हमको पता ही नहीं है।
लिहाजा कुछ तरीके के रेगुलेशन की जरूरत है। वो रेगुलेशन के फॉर्म्स क्या होंगे, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में लोग इन्वॉल्व हों जो कि सिविल सोसाइटीज की तरफ भी लोग हों, निष्पक्ष लोग हों, थोड़े पढ़े लिखे लोग हों और सरकार की तरफ से भी हों, और वो एक ऐसी पॉलिसी फॉर्म करें कि इस देश का सबसे बड़ी बात है कि इंटीग्रिटी, इस देश में कोई ऐसा काम ना हो पाए जो कि इस देश के अगेंस्ट हो। वो पॉलिसी फॉर्मेशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तो आपने एक गुंजाइश जताई है कि अभी भी जो पॉलिसीज या रूल्स जो फ्रेम हुए हैं उन पर अभी और डिबेट की गुंजाइश है। ये इंडिकेशन जरूर जो एक्सपर्ट पैनल है उसकी तरफ से है। राखी मैम हमारे साथ में है, रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी की। राखी मैम आपका स्वागत, वेलकम टू दिस डिबेट। और राहुल जी क्योंकि उनका कुछ काम का मसला था तो वो अभी मौजूद नहीं है, बाकी तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक जी आपका फाइनल कमेंट और प्रेम जी आपका अगर फाइनल कमेंट हो कि हमें इस डिबेट को कहाँ आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि अनुराग जी ने जो पॉइंट कहा कि लोगों की भागीदारी, तो जब कॉलिंग अटेंशन मोशन जो राज्यसभा में लाया गया तो ये आंकड़े भी हमारे सामने हैं कि 171 इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिस्पॉन्सेज उसको भेजे और 80 काउंटर कमेंट्स भी उसमें आए। तो ये कहना कहाँ तक ठीक है कि लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया? अब क्या जिनको इन्वॉल्व नहीं किया गया उन्हें ऐतराज है या इन्वॉल्वमेंट की जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे ऐतराज है? क्योंकि पॉलिसीज के जो भी अभी फ्रेम्स बन रहे हैं, अभी जैसे मैंने देखा कि नई पॉलिसी डीएसटी की पॉलिसी आई, नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, तो लोगों की भागीदारी उसमें पूरा बॉटम अप अप्रोच के साथ में कि लोगों के रिस्पॉन्सेज, फिर उसको रीड्राफ्ट करना, फिर नया ड्राफ्ट बनाना, तो वो रिस्पॉन्सेज भी मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कि वो उसको दरकिनार करने की शायद मंशा सरकार की हो भी तो अब वो संभव नहीं है क्योंकि वो प्रक्रियागत हिस्सा है अब। तो अभिषेक जी कहाँ आपका फाइनल कमेंट, और फिर अब प्रेम जी आपका फाइनल कमेंट, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि इस चर्चा को हम विराम दे सकते हैं। मैम आपके एक ही बिंदु पे मैं अपना फाइनल कमेंट दे पाऊंगा क्योंकि बाकी काफी सारे बिंदु हैं। एक तो ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस का जो आपने बात करी, पिछले साल की मैं आपको बात बताता हूँ। ये हमारा एक मंच है, न्यू इंडियन कंज्यूमर इनिशिएटिव, वहां पर मेंबर्स हैं, सो इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव। हमारे एक मित्र ने एक आरटीआई डाली थी वो टीवी रेगुलेशन को लेके कि जो आपके पास कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स को लेने का क्या साइंटिफिक तरीका आपने लिया है उस पर्टिकुलर रेगुलेशन को, आज तक तो उसका जवाब नहीं आया है। सो इनवाइटिंग कमेंट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। What comment are you taking on board and what comment are you rejecting? That minutes of the meeting is not made public. तो ये पारदर्शिता की बात है। प्रेम जी क्या कहेंगे, आपका फाइनल कमेंट अगर हो तो उसके बाद हम विराम दें इस चर्चा। जनतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई अस्थायी स्थिति नहीं होती और एक रेमेडी सिस्टम, एक सुधार की जरूरत, एक बहस की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन जितनी बातें अभी यहाँ हुई और अभी जब अनुराग कह रहे थे अपनी बात, तो मुझे लगता है कि जो बैक टू बेसिक्स वाली बात है वो और दृढ़ता से समझने की जरूरत है। अब तो सवाल इसी पे होगा कि लोकतंत्र में निर्णय की प्रक्रिया क्या। अन्ना आंदोलन के दौरान तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन सिविल सोसाइटी ने उस दौरान एक बात उठाई कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन संसद की सर्वोच्चता क्या नागरिकों के ऊपर है? क्योंकि जब डेमोक्रेसी है तो उसमें तो जनता सर्वोच्च है। आप तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप हमें बताएंगे कि पिछला कौन सा इलेक्शन, पिछला कौन सा पब्लिक डिबेट वे लोग जो सरकार में हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स के हैं, वो पब्लिक डोमेन में लेके गए और वहां से वो कुछ इनपुट या रेफरेंडम जैसी चीज लेके आए, एक अपनी समझ बना के लेके आए, और उसके बाद आज वो कानूनी किसी तैयारी की बात कर रहे हैं। वहां से जब आप डिलिंक होते हैं एक बार, तब ये हो जाता है कि जनता ये सवाल पूछने लग जाती है कि इसमें हमारा हित क्या है या हमारी चिंता को आप कहाँ सुन रहे हैं। अभी फिर से आप लौट के आए, सारे मीडिया पर्सन्स हैं, सरकार की असली बेचैनी क्या है।
और उसका टाइम लेंथ। पिछली बार जब आप अमेरिका में जुकरबर्ग के साथ बैठकर बात कर रहे थे, उस समय तो आपको ये लग रहा था कि एक ऐसा हथियार हमारे पास है जिससे हम दुनिया जीत सकते हैं। और अब जब ये थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है, तो आप देश को यह समझाने में लगे हैं कि ये आपकी निजता तक भी जा सकता है। एक और छोटी सी बात मैं कह दूं कि विकीलीक्स का खुलासा किसी सोशल मीडिया का खुलासा नहीं था। तो सरकारें दुनिया में किस तरह से काम करती हैं, उनकी अपनी शुचिताएं क्या हैं, उनकी अपनी ईमानदारी क्या है, जिसको संसद, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट और बहुत हम भरोसे के साथ देखते हैं, वो भी आज किस तरह से काम करती हैं। हमको उसको लेकर भी गंभीर होने की जरूरत है और उसके बारे में भी अपनी समझ बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, अनुराग जी, अभिषेक जी। अब मुझे लगता है कि एंडलेस डिबेट है। मेरे जैसे लोगों को लगता है कि इस बात पर बात होती रहे जब तक कि हम बहुत क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ने के रास्ते को ना समझ पाए। तो इस डिबेट को मुझे लगता है कि हम लोग आगे और भी सत्र जब भी हमें मौका होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग मौजूद रहे। और एक स्वस्थ परंपरा स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का सम्मान करते हुए, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे उदाहरण भी हमारे सामने है, जबकि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी की बात करते करते और वो जो अनहोनी घटनाएं होती है, लेकिन वो हो रही थी लेकिन हमारी निगाह नहीं है अगर अभी, तो हम उस जाल में ना फंस जाए, इसका एहतियात भी हमें बरतना है क्या, और कैसे एहतियात बरतना है इसकी बात जरूर होनी चाहिए। राखी मैम हमारे साथ में। राखी मैम, आप कुछ कहना चाहें अपनी बात, आपकी मौजूदगी, चांसलर सर की मौजूदगी में। थैंक यू। शिप्रा, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। और आज का ये डिस्कशन मैंने सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और इनफैक्ट डेफिनेटली ये मुद्दा ऐसा है जिसकी तह तक हमें जानकारी नहीं होती है, बट हम सुपरफिशियली बात सुन के रिएक्शन देते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी इसकी तह तक जाकर इसकी जानकारी लें, और फिर डेफिनेटली ओपिनियन अपना अपना होता है और उसको हमें रेस्पेक्ट भी करना है एक दूसरे के ओपिनियन को। तो आज हमने जो ये एक डाइवर्स ओपिनियन सुने और इसको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स टुडे, वेरी इंटरेस्टिंग। और आगे के लिए भी हम इनसे सपोर्ट चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, ताकि वो आगे जब मीडिया में जाएं तो पूरी जानकारी के साथ जाएं और फिर अपना एक ओपिनियन डेवलप करें। सो धन्यवाद सभी का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू राखी मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको हम फिर याद करेंगे, क्योंकि अब बच्चों का मानस तैयार करना है। आप जैसे लोग हमारे साथ में रहेंगे तो हमारा भी काम आसान होगा। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। आस्था, इफ यू वांट टू ऐड अ फ्यू वर्ड्स, बिकॉज हमारी पीछे टीम होती है, जब भी कोई आयोजन होता है उसके पीछे की एक टीम होती है जो लगातार काम करती है। आस्था इज वन ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स, और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ में हैं। आस्था, कैन वी वाइंड अप विद योर नोट? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Shri Rahul Mahajan sir, Shri Prem Prakash sir, Shri Abhishek Kumar sir, and Shri Anurag sir, for sparing your valuable time with us. It was really a very fruitful and informative session, and I'm sure participants have learned a lot about social media and the privacy. I also like to thank Dr. Ashok Gupta sir, Chancellor, IS Deemed to be University, and Dr. Rakhi Gupta ma'am, Rector and Registrar, IS Deemed to be University, for their constant support and guidance. I like to thank Dr. Shipra Mathur ma'am, Advisor, Department of Journalism and Mass Communication, for making this e-symposium possible and for ensuring the smooth implementation of this event. I also like to thank all my colleagues for their support. Thank you so much, and I request everyone to kindly turn on their camera so that we can have a good photograph. So I request everyone to kindly turn on your camera so that we can have a group photograph. प्रेम जी का शुरू से आग्रह था कि बच्चे भी अगर कैमरा खोल के बैठे तो महसूस होता है कि किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आदत बदलते से बदलेगी ये जो दुनिया है प्रेम जी, तो धीरे धीरे हम आदत भी बदलेंगे अपनी।
बच्चे अभी बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि दिख कैसे रहे हम कैमरा में, तो इसलिए शायद वो ऑन नहीं करते, क्योंकि घर पे बैठे हैं, अभी क्लासरूम नहीं है हमारे पास में। Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you Anurag ji, thank you Prem ji, thank you Abhishek ji for your valuable time and this making this discourse so fruitful. Thank you so much. We look forward to meet you again. Thank you. Thank you. And we'll make this recording available to all also. Thank you so much.